Hello student, happy Diwali to you all. Myself Professor Aditya, and from this day we will be covering UPSC, EPFO, APFC, EO and AO accounting. It will be covering all the concepts straight from class 11th. We will be covering this from NCERT only. Why NCERT? Because all the things that comes in UPSC are basically related to the basics. So always stick to basics. Hence, we will be starting and covering all the things in short and crisp manner so that it will be beneficial for you all, as well as you don't waste time to go through multiple sources, because in exam time you have to pick up only a single source of this or any of the source, but stick to that source only. Now, without wasting much time, we will be covering the unit 1 in less than 10 to 15 minutes. So, what is accounting? Accounting क्या है? So friends, this will be bilingual Hindi plus English, but if it would be more in English, please let me know in the comment section. In the next sections, we can have some more topics in Hindi. Now, what is accounting? Accounting क्या है? Accounting का मतलब है whenever your mother sends you to go and get something from a grocery shop, या फिर दिवाली की शॉपिंग के लिए your mother or your father gave you some of the amount and you get those things and you are left with some of the monies. Now what will you do with that money? You keep that with yourself. But when you write all these things in your notebook or in your notes or in your phone, when you get all the entries कि मैंने 10 रुपए का केक लिया, 5 रुपए की कॉफ़ी ली, ये स्पाइसेस लिए, XYZ. So writing these comes under accounting. Now there are two topics. What are these? The first one is accounting and the second one is bookkeeping. You can get the question related to them, that what is accounting and what can be bookkeeping. So we will be having this here. Now the art of keeping a permanent record of business transaction is bookkeeping. This is a bookish language, but in simple language what you can say that बुक कीपिंग का मतलब है वट एवर योर फादर एंड मदर कीप्स हिसाब इन देयर डायरी इज कॉल्ड बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का मतलब है अपनी नोटबुक में हिसाब लिखना. बट अकाउंटिंग जब हम बोलते हैं तो अकाउंटिंग इज मोर फॉर्मल. हाउ? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कीप ऑल योर रिकॉर्ड्स, देन यू आइडेंटिफाई कि अरे मैं तो इस बार ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा ले आया, अरे इस बार लाइटिंग पिछली बार से शायद सस्ती हो गई. सो व्हेन यू आर एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, then accounting comes into play. And how your question comes up in your exam like this: what is AICPA? That is American Institute of Certified Public Accountants. This was given in 1941. So the sun may come up, this thing may come up. Now the basic thing which UPSC now follows is theoretical questions. So your theoretical understanding must be thorough to answer such kind of question. For example, if a question comes up like what can be identification, measuring, recording and communicating of economic event, so first option would be bookkeeping, second option could be accounting. So you have to mark accounting because bookkeeping is a simple process. Simple process मतलब सिर्फ अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को. अब ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन पैसों का लेन या देन. फॉर एग्जांपल तुमने गूगल पे 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, दैट इज ट्रांजेक्शन. सामने वाले को 10 रुपए मिले, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन. सो गिविंग और टेकिंग मनी इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. नाउ सिंपल ट्रांजेक्शन का अगर रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, दैट इज बुक कीपिंग. बट वॉट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग कैन बी अ मेजर इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर पापा ने हिसाब लिखा डायरी में, तो पापा नीड नॉट टू शो दैट टू एनीवन. बट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस. इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस वेयर यू हैव टू गिव योर अकाउंट बुक to someone so that they can analyze, they can summarize, they can measure anything from your account book. Now there are some of the words which you must be thorough about. The first one can be identification. Identification का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो हमें अकाउंटिंग बुक में लिखना है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू अ ग्रॉसरी शॉप एंड यू बाय शुगर, you buy atta, you buy chai patti. Three things you bought. Now these three comes up, for example, 10 rupees per kg, then chai patti is 15 rupees per kg, then atta is 5 rupees per kg, for example, hypothetically. Now these three I need to count. How? 10 रुपये पर kg के हिसाब से अगर मैं आटा लाया तो 2 kg आटा लाया, दैट मीन्स 20 रुपीज़ गोज टू
my atta. Now this I have to write. Now for example, मैं पिछली बार जब गया था तब मुझे चाय पत्ती 15 रुपये की जगह 10 रुपये में मिली थी, तो चाय पत्ती का रेट 5 रुपये बढ़ गया. नाउ दिस 5 रुपये की बढ़त और दिस इंक्रीमेंट ऑफ 5 रुपीज़ आई नीड नॉट टू राइट इन अकाउंटिंग. सो दिस थिंग आई नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरे को क्या क्या अकाउंट बुक में लिखना है, क्या क्या अकाउंट बुक में नहीं लिखना. तो फॉर एग्जांपल मेरा इंक्रीमेंट हो गया या मेरी कोई मैनेजेरियल प्रोसेस चेंज हो गई. मैनेजेरियल प्रोसेस इन द सेंस, फॉर एग्जांपल पहले मैं लास्ट मंथ ग्रॉसरी पे 5,000 खर्च करता था, अब मैं 10,000 खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है दैट आई हैव इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड 5,000 इन माई ग्रॉसरी अकाउंट. नाउ एक बार मेरा आइडेंटिफिकेशन डन हो गया, देन आई कम अप ऑन दी मेजरमेंट पार्ट. मेजरमेंट हमेशा हम लोग जब भी अकाउंटिंग बुक में करते हैं, सो वी यूज टू डू दैट बाय द यूज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. मॉनिटरी पॉलिसी मीन्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसको आप फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स में लिख रहे हो, तो आपने कोई चीज़ बॉन्ड में लिखी, कोई चीज़ रुपीज़ में लिखी, कोई चीज़ स्टॉक में लिखी. फॉर एग्जांपल आई हैव 5 स्टॉक, I have 10 bonds and I have 5,000 rupees. But addition or subtraction would be a task now. So हम लोगों को ये बॉन्ड इन मॉनिटरी वैल्यू लिखना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर 5 रुपये का हमारा बॉन्ड है और हमारे पास 10 बॉन्ड है, तो वी हैव टू राइट कि 50 रुपये की एक एंट्री में बॉन्ड नाम से कर दूंगा. अगर मेरे पास 5,000 रुपये हैं, सो दैट इज़ अंडर रुपीज़ ओनली, 5,000 में कर दूंगा. स्टॉक्स अगर मेरे पास 5 हैं और इनकी वैल्यू 50 है, दैट मीन्स 250 मेरे को इन रुपीज़ लिखना पड़ेगा. नाउ this monetary policy can be in any of the unit conversion. You can say that dollar में हो सकता है, you can say euros में हो सकता है, dirham में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, but always take a unique currency. Now what is recording? अब recording is summarizing all the things which you have taken care of. Now summarizing के लिए ना एक pattern follow होता है. Why to have a pattern? Why to have a common procedure? Why? So that whenever a person used to see your account book, they can easily come up with the resolution कि भाई इसने इतना 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 पैसा खर्च किया है. बट हमारे पापा या मम्मी जो भी हिसाब लिखते हैं, वो उनकी अपनी लैंग्वेज में होता है, वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है. वो कभी भी क्रेडिट डेबिट नहीं लिखते. फॉर एग्जांपल वो लिखते हैं कि कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ, मेरे पास कितना बचा है, और उसको वो मैच कर लेते हैं फ्रॉम देयर पर्स कि मेरे पर्स में इतना पैसा है, मेरा इतना बचा होना चाहिए, बात खत्म. बट इन अकाउंटेंसी यू हैव टू राइट इन सच अ मैनर सो दैट एनी ऑफ द अकाउंटिंग फैमिलियर पर्सन कैन चेक योर डेटा. नाउ what is this communication? Communication is the best part of accounting. Why? Because after communication only the business make their decision. How decision? For example, मेरी एक कंपनी है जिसको you can say बल्ब बनाने हैं, ठीक है. अब बल्ब बनाने हैं, तो बल्ब में उन लोगों ने पूरा कॉस्ट एनालिसिस किया. कॉस्ट एनालिसिस में दे फाउंड आउट कि भाई बल्ब का जो फिलामेंट है वो बहुत महंगा आ रहा है, तो मेरे को फिलामेंट का मटेरियल चेंज करना है. अब ये सब मेरे को कैसे पता चला? अकाउंटिंग से. अकाउंटिंग से मुझे पता चला कि भाई मेरा जो फिलामेंट है वो बहुत महंगा आता है. नाउ आई हैव टू कम्युनिकेट दिस थिंग टू द हायर मैनेजमेंट कि फिलामेंट बहुत महंगा आता है, नाउ वी हैव टू रिप्लेस इट. सो दिस थिंग वी हैव टू कम्युनिकेट टू दी लार्जर ऑडियंस. नाउ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक फर्म होती है दैट यूज टू वर्क फॉर प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वैल्यू क्रिएशन आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ये जो इवोल्यूशन हुआ था अकाउंटिंग का, दैट यू कैन ईजिली रीड एंड हैव अ दिस थिंग इन माइंड कि ये आ सकता है. चित्रागुप्ता ने इंडियन माइथोलॉजी के थ्रू ये अकाउंटिंग को इवॉल्व किया था, बस इतना. और इसमें कुछ डेबिट क्रेडिट के टर्म हैं, वी विल बी कवरिंग दैट in our later portion. Now this flowchart is very important. First, how accounting process हमें पता होना चाहिए. What is accounting process? Accounting process is identification, summarizing and all the things you can see. Now कम्युनिकेशन हमें पता है. कम्युनिकेशन क्यों करना होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? बिकॉज ऑन दैट ओनली वी हैव डिसीजन मेकर. नाउ डिसीजन मेकर कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब ये क्वेश्चन आ सकता है, हु कैन बी इंटरनल डिसीजन मेकर, हु कैन बी एक्सटर्नल डिसीजन मेकर. अब इंटरनल डिसीजन मेकर का मतलब होता है दोज पर्सन हु आर रिलेटेड टू योर फर्म ओनली. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे CEO या तुम अगर किसी कंपनी के CEO हो, तो यू हैव टू मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली.
नाउ एक्सटर्नल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल योर कंपनी वॉन्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सम अदर कंपनीज, सो इन दैट केस यू हैव टू शो योर अकाउंट बुक्स. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फर्म पे कितना डेट है, तुम्हारी फर्म कितना उधार में चल रही है, तुम्हारी फर्म को नुकसान कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है. सो विद दीज नंबर्स, ओनली विद दीज नंबर एक्सटर्नल एजेंसी कैन इन्वेस्ट इन यू. नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक इवेंट? इकोनॉमिक इवेंट हमें पता चलता रहता है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें फ़ायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है या फिर हमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, वी कैन गिव बाय. नाउ दिस डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एक बार पेपर से पहले पढ़ के जाना है. व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग दैम एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग दैम. Accounting is important, summarizing recorded transaction, interpreting them and communicating the results is called accounting. तो business bookkeeping और accounting में difference आ सकता है. in assertion वाले question में भी to check your understanding. Now what are the objective? Objective simple सा होता है बुक कीपिंग का कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देख लें और हमें ये पता चल जाए कि हमारा कितना पैसा आया कितना पैसा गया. अब फंक्शन क्या होता है इसका? बस हमारे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए उनको लिखना. इसका स्कोप ना लिमिटेड है, जबकि यहाँ पर जो स्कोप है दैट इज़ टू रिकॉर्ड, टू क्लासीफाई, टू समराइज the transaction and communicate the result. Now what are the basis voucher and other supporting document evidences, this you have to keep in mind. Now बुक कीपिंग जो भी होती है दैट इज़ बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. नाउ लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, बुक कीपिंग के लिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, बट अकाउंटिंग के लिए यू मस्ट हैव अ इन डेप्थ नॉलेज हाउ टू मेक P&L बुक, हाउ टू मेक अ ट्रायल बैलेंस बुक. वी विल बी कवरिंग दीज इन नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी. नाउ बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, धीरे धीरे हिसाब लिख लिया, देन यू कम अप टू योर सिस्टम एंड देन डू द अकाउंटिंग पार्ट. Okay, so with this we have covered the first chapter. Now what is your homework? The first thing is try to solve PYQs question. We will be covering that too here. Now these are some easy questions. What is this called? The next step, the interested user, what are these? So you have to solve this. Okay, with this we have covered the first part of our first chapter.